Hello. Let me wait if a few more students are coming. Then we will start today's lecture. In the meantime, if you have any query related to previous slides or previous chapter, you may ask. I can unmute you all if you want to ask something. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Just 2 minutes more. Then we will start discussion on PLC. It's the last topic of our syllabus. This includes a bit programming. Very simple logical programming is there in this section. अभी तक आपको कोई पिछले सेक्शन में कोई क्वेरी हो? Any of you, if you have any query? स्तुति आप ग्रुप पे डाल दो कि अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो ये भी लोग थोड़ा डिले हो गया था मेरा, मैं एक्चुअली पैड यूज कर रहा था, मुझे था कि आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, तो उस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया ये. कहीं ऐसा ना कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हो एंड देन दे लेफ्ट. So you just put a message on the group. In the meantime, we'll start. Okay. So let's start today. We'll discuss programmable logical controllers. So when we start, let me tell you what we are going to discuss today. We'll discuss some introduction about PLCs, then hardware architecture and its block diagram, and finally the programming of PLCs, and obviously through applications. Okay, the need of automation gives us the requirement of some more sophisticated automation system. In the old times, when in let's say 1970s or 19 late 60s or 80s, when the automation in industry starts, then usually people have relays to control, to on off the actuators. उनके पास जितनी भी मशीनरी होती थी उनको सेंस करने के बाद when they want to control them, they have relays to switch on and off, or they have the timers. Suppose they have a thermal flask, a big kind of reactors जिसको उन्होंने आधा घंटा चलाना था, फिर 2 मिनट के लिए बंद करना है. So they have some timer based relays, and due to that there is a large chunk of connecting cables and wires, and we call them that is a hardwired panels and devices. तो प्रॉब्लम उसमें क्या थी? दे वर नॉट स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल. Flexible means if industry want to upgrade them, they want to add some new devices into it, they need to lay down the whole new wiring from control room to the actual field, and that becomes very costly. So these were the limitation in automation during that period. So the answer was, let's come with a programmable controller. So it means we are moving from हार्डवायर्ड कंट्रोलर जहाँ पर पहले रिलेज होती थी, जैसे हमारे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं आजकल, तो ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास लॉजिक, क्योंकि हम डिजिटल यूज कर रहे थे वहां पर ऑलरेडी, 0 to switch off and 1 to switch on, but there were huge hardware wiring is involved into it, because the control was in a combined at a central level known as control room, and industry is spread over many acres, like refinery plants, processing plants. So for those kind of industry, it's very cumbersome to have these kind of systems. अगर उनको modify करना पड़े तो it is very challenging task. Another one is if we want to modify the device only. Suppose earlier we have used the device made by, let's say, ABB, Allen Bradley company का हमने device use किया हुआ, and now we want to use a device made by Schneider or Siemens, then it may be possible that their connection is bit different. Either it is only one additional wire, तो एक additional wire को lay down करने के लिए control room से लेकर
उस पॉइंट तक इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली. So the answer of this problem was PLC, that is programmable logical controller. Even you can see how from this cumbersome wiring we have moved to this small set of wiring. I think quite a number of people have joined. Let me unmute all of you. कुछ background noise आ रही है. Just 1 minute. Okay, I've muted all of you. So with this PLC means now we have relays are there all जो already थी इसके अंदर, but now these relays are digitized. That is digital relays are there which can be on and off through some program. And to do the programming we need some processors. So ultimately what we call them in initial days, people are used to say that these are industrial computers because ultimately there is some processor, but they were so rugged that they can adapt the manufacturing environment of high temperature, huge, huge noise, and there are so many other parameters like dust is there, but they were very, very rugged. So they were not sophisticated personal computers, but they were rugged kind of a digital computers, and we start calling them logic controllers since they were programmable because we have some kind of additional devices which can do the programming either through handheld devices or through personal computers connecting through serial port. We start calling them that they are programmable logical controllers. So I think the need is very, very clear to all of you. That is to coming out of from this cumbersome hardwired logic in the industry, we want to come to a sophisticated, programmable, scalable, flexible environment that is called PLC. And the range of PLC is so large that it can be used even for two set of लिफ्ट्स. जैसे हमारा जो नया बिल्डिंग बना है कंप्यूटर साइंस का, उसके अंदर जितनी भी लिफ्ट लगी हुई हैं दे हैव बीन कंट्रोल्ड बाय PLCs. Okay, and PLCs can be also used in a big industry like a refinery. So its range, its application range is very, very huge. When we know the input output numbers are very less, then we can use smaller PLCs, and if we see the number of input outputs is very, very large, we can go for uh, industrial PLCs, that is for large number of input and output devices. Okay, one query is there. Let me allow you. Those who want to ask. Yes, please. सर ये जो PLCs हैं सर, ये बेसिकली क्या कोबोल पे डिपेंडेंट होते हैं, कोबोल लैंग्वेज जो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कोबोल सर तो बहुत रिसेंटली ही. न्यूज़ में आया था हाँ हाँ. कि जो यूएस की जितने भी हार्डवेयर बेस्ड कंपनीज हैं वो लोग कोबोल के अब, क्योंकि वहाँ पे उनके सर्वर्स क्रैश हो गए तो कोबोल के सारे प्रोग्रामर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, बट क्योंकि बहुत पुरानी लैंग्वेज है तो उनसे अपग्रेड नहीं हो पा रहा उनका सिस्टम. नहीं, ऐसा तो नहीं है. मे बी किसी कंपनी का इशू होगा ये. आप लोग ज़्यादा मेरे से बेटर अवेयर ऑफ हो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सीमेंस जैसे है वो 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ कर रहा है अपने यूजर को. फर्स्ट वन इज लैडर डायग्राम. लैडर डायग्राम वही डायग्राम है जो PLC के आने से पहले हार्डवायर्ड जो लॉजिक था उसमें यूज होती थी, यानी इलेक्ट्रीशियन और जो सुपरवाइजर डिप्लोमा होल्डर यूज करते. तो उन्होंने वही लैंग्वेज को कंप्यूटर पे अलाउ कर दिया यूज करने के लिए. अभी इसके बाद हम वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे लैडर डायग्राम की. देन सीमेंस ने एक सेकंड लेयर बनाई दैट इज कॉल्ड STM, स्टेट फ्लो टर्मिनोलॉजी, जो उसकी लैंग्वेज है. एंड थर्ड वन इज तो कंपाइलर. बेसिकली कंपाइलर बेस्ड लेयर लैंग्वेज. टेक्नोलॉजी है ये. यस यस, यू कैन से, क्योंकि ये अब आपकी कंप्यूटर साइंस डीप में आप जाओ तो यू कैन से दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ये अल्टीमेटली डिजाइन सारा कंप्यूटर इंजीनियर्स ने ही किया है टू गिव द पावर टू एट द लोअर लेवल ऑल्सो. यानी जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी छोटी मोटी सेटिंग्स करने के लिए प्रोग्रामेबल बना दिया. ठीक है, जैसे हमारे कुछ वॉचेज हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं, उनके आने से पहले अगर ये डायग्राम आप देखो जो मैंने अभी शेयर किया हुआ है, तो इसका ये जो पैनल देख रहे हो सेंटर में, ये ओपन हो जाता है हल्का सा. लेट्स सी शो यू. अगर शुरू में वो डायग्राम ये वाला, ये वाला डायग्राम, ये ओपन हो जाता है हल्का सा. लेट्स सी शो यू. अगर शुरू में वो डायग्राम, ये वाला, ये वाला डायग्राम, ये ओपन हो जाता है हल्का सा. ये वाला, ये वाला डायग्राम, ये ओपन हो जाता है हल्का सा.
हाँ जी, अभी मैं ऑडिबल हूँ? यस यस। ओके, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो कॉल आई थी मोबाइल से, तो मैंने अभी नेटवर्क चेंज कर लिया। इट्स नॉट फ्रॉम माय मोबाइल। या तो ये जो छोटी सी स्क्रीन है, तो जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने नई सेटिंग्स क्या की है। तो दिस इज वेरी सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट मॉडल ऑफ पीएलसी विच इवन वर्क ऑन लैन, एंड दिस इज द जो उनका हायर वर्जन है, जो डिफरेंट कंपनी एबीबी कंपनी है, उनका बड़ा वाला पीएलसी। तो पीएलसी की रेंज बहुत ज़्यादा है। यू कैन गो फॉर इवन जो 4-5 लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए छोटा सा पीएलसी बना लिया, और इंडस्ट्री में लगाने के लिए इसका बड़ा वर्जन। और ये स्टैक बेस्ड है, आप ऐड ऑन करते जा सकते हो और नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट। एक हम सिंपली ऐड ऑन रैक की तरह ना, ये साइड वाइज ऐड होते जाते हैं। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दे आर रिकॉन्फ़िगरेबल, स्केलेबल, प्रोग्रामेबल, पोर्टेबल। और आजकल तो इनकी जो कनेक्टिविटी है वो HART एक प्रोटोकॉल था पहले इंडस्ट्री में, हाइब्रिड हाईवे एक्सेस रिसीवर ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल। तो नाउअडेज दे आर कंपैटिबल विद ब्लूटूथ, लैन एंड वाईफाई आल्सो। So that is the advantage with new range of PLCs. Now coming to its hardware, broadly speaking इसके अंदर सिर्फ 6 कंपोनेंट्स हैं। वन इज CPU। डेफिनेटली अगर हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड डिसीजन मेकिंग है, वी शुड हैव वन CPU। देन मेमोरी, अगर हमने कहीं प्रोग्राम को लोड करना है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो रैम चाहिए रजिस्टर्स के लिए, कुछ टाइमर्स हमारे पास इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, काउंटर्स हैं, उनके लिए रैम अवेलेबल है। तो मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर रोम एंड रैम, प्रोग्राम एंड स्क्रैच मेमोरी। देन थर्ड एंड फोर्थ आर हार्डवेयर, दैट इज इनपुट सेक्शन एंड आउटपुट सेक्शन। अब माइक्रो कंट्रोलर से सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही है कि इसकी जो इनपुट वोल्टेज की रेंज है, दैट वेरी फ्रॉम 3 वोल्ट टू 24 वोल्ट, एंड इवन देर आर सम स्टैक्स विच कैन हैंडल 220 वोल्ट AC वोल्टेज। तो आप इसको AC इनपुट भी दे सकते हो, 5 वोल्ट डिजिटल इनपुट भी दे सकते हो, 12 वोल्ट भी, 24 वोल्ट भी। तो दैट इज द रगेडनेस एंड यू कैन से रेंज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज बेटर देन द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, अब इंडस्ट्री में हम ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर का प्रोजेक्ट बनाकर वहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशन है। तो वहाँ पर हम एक रगेड काइंड ऑफ डिवाइस लेकर जाएंगे विच इज ऑब्वियसली प्रोग्रामेबल, एंड PLC इज आंसर फॉर दैट। एंड सिमिलरली पावर सप्लाई आउटपुट जो है, आउटपुट सेक्शन, इट कैन ऑल्सो हैंडल 5 वोल्ट 24 वोल्ट रिलेज, एंड इट गिव्स द आउटपुट टू AC devices, that is it can handle 230 volt or 220 volt also. So you can see its output input range is also very high. Then power supply, definitely जैसे कंप्यूटर के अंदर SMP होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई, तो सिमिलरली हमें इसमें भी स्विच मोड पावर सप्लाई चाहिए। The reason is we may need amplifiers, we need switching from low voltage to high voltage। हमें 230 वोल्ट को भी हैंडल करना है, 24 वोल्ट को भी, 12 वोल्ट को भी, 5 वोल्ट को भी। So that is why we need a dedicated sophisticated power supply for this. And definitely the last device is programming device. It could be handheld, ये जो टॉप पर बना हुआ है, जिसमें हम लैडर प्रोग्रामिंग ही सिर्फ कर सकते हैं, as well as we can also connect PC पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लाइक C बेस्ड, जो इनके अलग कंपाइलर्स आते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। So this is a block diagram. I will upload this PPT later on, so you can note down this block diagram later on also. So whatever we have discussed, like memory, CPU, input devices, input module, output module, and finally power supply, so all this have been stated here. Yes, the next important thing is PLC scan time. PLC scan time, जैसे हमारा दो तरीके की प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी होगी अभी तक। ऑर्डिनो में हम लोग सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, यानी जैसे जैसे मैंने स्टेप वाइज लिखा है वो वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, सिक्वेंशियल। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिक्वेंशियली ना होकर के रिक्वेस्ट बेस्ड हो जाए, तो आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस टू बी हैंडल्ड बाय एटमेगा और ऑर्डिनो हैंडल कर सके। उसके लिए फिर हमें एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, छोटा सा, जो रिक्वेस्ट को मैनेज करे और रिसोर्सेज को मैनेज करे। ठीक है, उसके लिए फिर हम UI और ऑपरेटिंग सिस्टम या RTOS की बात करते हैं। तो अभी तक हमने इन दो चीज़ों के बारे में सुना है। वन इज माइक्रो कंट्रोलर, जो डेडिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वो
एक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। यूजली लैब के अंदर जितने भी हम प्रोग्राम करते हैं ये सीक्वेंशियल होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। आपको पता होता है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें इंटरप्ट्स डाल देते हो, 3 या 4 इंटरप्ट्स, उनको प्रायोरिटाइज कर देते हो। बट एक्चुअल सिचुएशंस में वी प्रेफर कि अगर ज़्यादा रिसोर्स हमें चाहिए, मेमोरी चाहिए, ज़्यादा इनपुट आउटपुट्स हैं, वी प्रेफर दैट वी शुड गो फॉर आर्टोस, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके ऊपर फिर दोबारा तो ये दो चीज़ें हो गई, सिक्वेंशियल और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। लेकिन पीएलसी में थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कंटिन्यूसली स्कैन होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो इनपुट बेस्ड है कि अगर मेरी ये 2 स्विचेस ऑन है और थर्ड स्विच ऑफ है तो ये एक्शन हो जाए। उसके लिए क्या बनाया उन्होंने? स्कैन साइकिल बना दिया। इट विल स्कैन ऑल द डिजिटल इनपुट्स, उसके लॉजिक, आइदर दे आर एनालॉग इनपुट और दे आर डिजिटल इनपुट। So the complete inputs have been scanned, then they have been compared with the program। हर एक इनपुट को उसके लॉजिक के साथ कंपेयर किया जाता है। उसके बेसिस के ऊपर एक टेबल बनता है कि मेरा अभी ये स्टेटस है तो ये आउटपुट होनी चाहिए। फिर ये टेबल आउटपुट मॉड्यूल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो मॉड्यूल जो है इनपुट से होल्ड रखना भी, मैं इसको पहले थोड़ा कनेक्शन को स्टेबल करूँ एक बार। ये भी एक बार और कट होगा, मैं इसको दूसरे नेटवर्क पे ले लूँ, सॉरी। Yeah, I'm audible now? Yes, sir. Okay, sorry अभी। तो जो स्कैन टाइम की बात कर रहे थे, पहले इनपुट स्कैन होगी सारी की सारी, देन इट विल कंपेयर विद द प्रोग्राम जो हमने बिल्ड किया है, ठीक है। वहां से फिर वो आउटपुट को डिसाइड करेगा कि इस इनपुट बेसिस के ऊपर मेरी ये आउटपुट होनी चाहिए, और ये सारी मॉड्यूल को ट्रांसफर कर देगा आउटपुट मॉड्यूल को। एंड अगेन गो टू द इनपुट्स, अगेन कम टू द प्रोग्राम एंड चेक वेदर फॉर दीज काइंड ऑफ इनपुट्स ये आउटपुट होनी चाहिए या नहीं। तो नाउ वी आर कमिंग टू पीएलसी प्रोग्रामिंग। यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की आपको टिप्स दूंगा, आई थिंक वहाँ से फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जो अभी मैंने आपको बताया ना स्कैन साइकिल का, वो इन प्रोग्रामिंग जो टिप्स हैं इससे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि हम जो पीएलसी डिवाइसेस हैं दे हैव बीन केम फ्रॉम रिले लॉजिक, जो हार्डवेयर लॉजिक था, तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी उसी लॉजिक से आई हुई है जो वायरिंग वाला लॉजिक था। तो यू विल सी जब मैं बात करूंगा रंग्स, ओपन, नॉर्मली क्लोज्ड, तो वो एक्चुअली में है बूलियन अलजेब्रा ही सारा, डिजिटली ऑन ऑफ। लेकिन टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन हुई है सिस्टम की, दैट इज फ्रॉम हार्ड वायर्ड रिले लॉजिक कंट्रोलर्स। वो प्रोग्रामेबल नहीं थे, दे वर हार्ड वायर्ड, उनको मैनुअली ऑन ऑफ करके हम लोग काम करते थे। बट देन वी स्विच ओवर टू प्रोग्रामिंग बेस्ड। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है लैंग्वेज दैट वी प्रेफर इज लैडर लॉजिक। एंड लैडर लॉजिक इज, लैडर इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसे होता है, इस तरह की डायग्राम होती है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, बीच में हम इस तरह के कनेक्शंस करते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। तो ये एक सीढ़ी की तरह इसकी शक्ल बन जाती है। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लैडर बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो वन साइड इज कॉल्ड पॉजिटिव रेल, नेगेटिव रेल। हालांकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कनेक्शन नहीं है, इट इज जस्ट फॉर एक साइड जो है इनपुट साइड है, द लेफ्ट साइड, एंड द राइट साइड इज नोन एज फॉर आउटपुट साइड। तो सारी जो आपकी आउटपुट की कनेक्टिविटीज होंगी दे विल बी ऑन द राइट साइड, लाइक लोड एंड इनपुट स्विचेस। तो इन जो ब्लू लाइंस हैं, ये जो लैडर की एक सीढ़ी का एक जो वी विल कॉल देम रंग, RUNG, young 1, 2, 3 and so on, and it will scan from left to right, that is input 1, input 2, then switch on the output 2. उसके बाद ये नीचे जाएगा, so it will move from left to right and then top to bottom. That is how the program sequence is. अगर आप चाहते हो कि पहले स्विच 1 को स्कैन किया जाए तो उसको ऊपर रखो, अगर आप स्विच 4 को चाहते हो स्कैन करें तो स्विच 4 शुड बी ऑन द
हाईएस्ट रन। इसमें हमारे पास जो पुश बटन है, ये डायग्राम जानबूझ के इस तरह का बनाया गया है कि सपोज वी वांट टू इलेक्ट्रिकल अगर सर्किट आप देखो कि मेरे पास एक पुश बटन है, जैसे ही मैं उस पुश बटन को प्रेस करूं ये मोटर रन हो जाए, ठीक है। और पुश बटन का काम होता है कि until unless you press it will give you the output, as soon as you release it will switch off, ठीक है। तो वो प्रेशर बेस्ड होती है, लेकिन यहाँ पर हमने पुश बटन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं नॉर्मली ओपन से। तो ये जो दो लाइंस देख रहे हो, दे आर द लैडर प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्विच, दैट इज द ओपन स्विच, नॉर्मली ओपन, NO इसको बोलते हैं। तो दो लाइनें अगर ओपन देखो आप, इट मीन्स अभी स्विच ऑन नहीं है, ठीक है। जैसे ही ये ग्रीन होगा यानी ये क्लोज हो जाएगा तो ही ये मोटर रन करेगी। तो दिस जो स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज यूज फॉर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, यानी स्विच ओपन है यूजुअली। अगर हम इसको क्लोज करेंगे मीन्स वी आर गिविंग इनपुट। अगर इससे उल्टा है, सपोज कुछ बटन्स होते हैं जो नॉर्मली क्लोज होते हैं, उनको हमें रिलीज करना है जाकर के, यानी वो ऑलरेडी क्लोज हैं, जब तक उनको क्लोज नहीं करेंगे वो इनपुट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम उनको प्रोग्राम के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज दे आर ऑलरेडी क्लोज, until unless it is get open output will be low or high as the program say। तो ये तो होगी इनपुट की डायग्राम। आउटपुट के लिए भी यूज राउंड ब्रेसेस की तरह कुछ जो डायग्राम है वो यूज कर रहे हैं। तो आउटपुट के लिए हम लोगों ने राउंड ब्रेसेस यूज करनी है और इनपुट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगेन नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। अगर दो स्विचेस सीक्वेंस में लगी हुई हैं, सीरीज में लगी हुई हैं, देन इट विल बी टर्म्ड एज एंड लॉजिक। यानी इसका मतलब क्या है, अगर स्विच 1 ऑन होगी उसके बाद स्विच 2 भी ऑन होगी, तभी ये डोर की मोटर जो है रन करेगी, यानी डोर तभी ओपन होगा जब मोटर स्विच 1 और स्विच 2 क्लोज होंगे, यानी अब ये रन करेंगी। तो नॉर्मली ये ओपन है, यानी नॉर्मली स्विच हमने प्रेस नहीं की हुई, तो व्हेन वी प्रेस दिस, प्रोग्राम के अंदर ऐसे क्लोज लिखा आ जाएगा। जैसे ही वो सेंसर उसको सेंस करेगा कि ये स्विच प्रेस कर दिया है, यहाँ पर एक मिनट में एक मार्कर ले लूँ ताकि आपको थोड़ा सा बता पाऊँ। तो जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूंगा, इनपुट स्कैन करने के बाद अपने आप स्क्रीन पे ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि स्विच 1 प्रेस कर दिया यूजर ने, जैसे ही स्विच 2 प्रेस हो जाएगी यहाँ डायग्राम पे ऐसा आ जाएगा और अपने आप जो आउटपुट है वो आपकी इनेबल्ड हो जाएगी। तो दैट इज हाउ एंड लॉजिक वर्क्स। इसमें क्या दिखाया हमने, इसमें है कि एक तो हमारी जब तक इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक यानी नॉर्मली ओपन है, बट सेकंड स्विच जो है ये ऑलरेडी क्लोज्ड है, यानी उल्टा लॉजिक हो गया है। तो ये नॉट हो गया सेकंड स्विच के लिए, ठीक है। ये ऑलरेडी ऐसे बना हुआ, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आपको ग्रीन सिग्नल देगा फॉर द मोटर। आई थिंक थोड़ा सा आपके लिए अभी बिना प्रैक्टिस के समझना मुश्किल है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट फ्यू डायग्राम। यस, दिस वन, ये है लॉजिकल और। अब हमने ये डायग्राम को इस तरह से बनाया है कि आइदर ऑफ ए और बी विल बी ऑन देन लैंप विल बी ग्लो। तो और के लिए हमने क्या कर दिया, दोनों रंग को पैरेलल बना दिया, यानी आइदर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास कर जाए या इस पॉइंट से ऐसे यहाँ चला जाए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ नेगेटिव लेते हैं, यानी जो पीएलसी स्कैनिंग है वो लेफ्ट टू राइट कर रहा है, ठीक है। तो वो देखेगा कि स्विच 1 ऑन है, नहीं है, तो वो नहीं जलाएगा बल्ब को। फिर दोबारा से चेक करेगा कहीं बी तो ऑन नहीं है, अगर दोनों में से कोई भी ऑन नहीं है तो लैम्प विल बी रिमेन ऑफ। ए और बी दोनों में से कोई भी ऑन हो जाएगा तो लैम्प विल बी ग्लो। क्यों, क्योंकि लॉजिक हमने क्या बना दिया है, और बना दिया है। अगर मैं ए और बी को सीरीज में लगा दूं तो क्या होगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी हु विल आंसर आउट ऑफ यू। लेट मी म्यूट ऑल ऑफ यू। अगर मैं दोनों को सीरीज में लगा दूंगा तो anyone can answer please, if both the switches
will be in series rather than up and down, अगर एक ही रंग में लगी होंगी तो वो क्या होगा, एंड लॉजिक, यानी जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे स्विचेस तब तक लैंप ग्लो नहीं करेगा। ये ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है, तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। यस, यू कैन रेज योर हैंड। Akshit, is it okay? Should I continue with the last example? Yes, sir. Okay, thank you. तो ये जो एग्जांपल है ये एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल है जिसमें 4 हमारे पास सेंसर्स हैं, ऑन ऑल दो सेंसर्स आर टेम्परेचर बेस्ड, की हीट बढ़ रही है। ये कोई भी सेंसर हो सकते हैं, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, बट इस एग्जांपल में हमने 4 टेम्परेचर सेंसर ले लिए। लॉजिक ये बनाया है कि इफ ओनली वन ऑफ द इनपुट्स इज टर्न्ड ऑन नथिंग विल हैपन, लगेगा कि ज़्यादा कोई इशू नहीं है। ये चारों जो टेम्परेचर सेंसर हैं एक बिल्डिंग के अलग अलग लोकेशन पर लगे हुए हैं, यानी एक ही जगह पर टेम्परेचर हाई हुआ है, वो एक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। If two of the input sensor will turned on, there is a red pilot light will be activated within the that building. तो एक रेड लाइट ऑन हो जाएगी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2 सेंसर अब रीडिंग हाई दे रहे हैं। अगर तीनों टेम्परेचर सेंसर आउट ऑफ 4 3 टेम्परेचर सेंसर सेम टाइम पर हाई टेम्परेचर का इनपुट देंगे तो हम एक अलार्म बजाना चाहते हैं कि दैट शुड बी अ सायरन। लेकिन बाय चांस अगर चारों टेम्परेचर सेंसर हाई इनपुट की वजह से इनपुट दे रहे हैं, पीएलसी को हाई 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 लॉजिक हो रहा है चारों का, तो हम क्या चाहते हैं क्या हो कि अलार्म भी हो, फायर डिपार्टमेंट को भी ट्रिगर हो जाए। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई हमने एसएमएस कनेक्टिविटी बना रखी है तो उनको भी एसएमएस चला जाए ऑटोमेटिकली। अब इस चीज़ को हम लैडर प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो इसका बूलियन डिसाइड करते हैं। दैट इज वी हैव 4 इनपुट्स, इनपुट ए बी सी डी को हमने IN1 IN2 IN3 IN4 बना दिया, और सारी की सारी जो इनपुट है इनका जो स्टेटस है पीएलसी की टर्मिनोलॉजी में NO है, यानी नॉर्मली ओपन है। तो यानी जब इसकी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बिना लाइन के, बिकॉज इट इज नॉर्मली क्लोज, टेम्परेचर अभी हाई नहीं है। ठीक है जी, और 3 हमारे पास आउटपुट्स हैं। कौन कौन सी आउटपुट्स थी, एक तो रेड पायलट है, अगर कोई 2 हो जाए, कोई भी 2 हो जाए तो रेड लाइट हो, कोई भी 3 हो जाए तो अलार्म यानी सायरन ऑन हो जाए, और तीसरी आउटपुट थी कि फायर डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जाए। तो सबसे पहले हमने आउटपुट मॉड्यूल और इनपुट मॉड्यूल को फिक्स कर लिया। नाउ द लास्ट स्टेप इज बिल्ड द लैडर लॉजिक। अब इसको आप आपकी सी प्रोग्राम में भी लिख सकते हो, जो आपको एलन ब्रैडली और सीमेंस ने उन्होंने उसका नाम STM लैंग्वेज रखा हुआ है, यू कैन सर्च ऑन दैट। और लैडर डायग्राम में हम इसको ऐसे बना रहे हैं, IN1 IN2 यानी कोई पहले 2 स्विच ऑन हो सकते हैं और लॉजिक लगा के 1 और 3 और 1 और 4 और 2 और 3 2 और 4 3 और 4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास 2 के ये लॉजिक बन गए, 1 2 3 4 5 और 2 4 और 6 लॉजिक बन गए, 2 एट अ टाइम। तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से चेक कर सकते हो कि अगर हमारे पास 4 वेरिएंट्स हैं, 2 एट अ टाइम हमने लेने हैं, तो दीज आर द कॉम्बिनेशंस। तो ये 6 के 6 जो कॉम्बिनेशन है ये किस आउटपुट को रेफर कर रहे हैं हमारे लिए, ओनली फर्स्ट आउटपुट। ये क्या थी फर्स्ट आउटपुट, रेड लाइट, यस। देन अगर कोई भी 3 सेंसर ऑन हो जाएंगे तो उनको एंड लॉजिक में लगाना है कि 3 एट अ टाइम होने चाहिए, लेकिन वो 3 कोई भी हो सकते हैं, इसलिए हमने और लॉजिक भी लगा लिया। दैट इज 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4। तो इनको पैरेलल में लगा लिया, बट 3 एट अ टाइम जरूर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 इसका हो जाए और 2 उसका, तो हमने वो पैरेलल बना दिए सारे। तो पैरेलल लाइन मीन्स और लॉजिक, अगर सीक्वेंस में लगे हुए हैं स्विचेस तो दे आर एंड लॉजिक। तो अगर 3 एट अ टाइम हो रहे हैं, इट मीन्स आउटपुट 18, ये क्या थी, सायरन, यस। एंड द लास्ट वन इज व्हेन ऑल द 4 सेंसर गिव्स यू हाई आउटपुट हाई इनपुट, इट मीन्स you have to inform the fire department. So that's all what we have explained with other
students. These are some of the reference. Now I'm open to few queries. अगर आपकी queries थोड़ी डिटेल के लिए होंगी, I can share more programming examples with you. We have still 5-10 minutes with us, 5 minutes with us until our timing is over for this meeting. So you can ask the questions. Yes, please. 8 मिनट हैं अभी भी. हाँ जी, इशिका, is it clear? इशिका, सर ये माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में बुलियन टेबल से बनता है ना, जो हमने अभी लैडर से इम्प्लीमेंट किया है, ये वाली चीज. हाँ जी. तो नहीं, सर ये आपको देखने नहीं, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इसमें और भी आगे हैं. इवन टाइमर्स हैं, काउंटर्स हैं, इफ लूप है, वाइल लूप है, सब कुछ है इसमें, क्योंकि वो हमारे सिलेबस की पेरीफेरी से बाहर चला जाएगा. ठीक है, इसलिए वो मैंने वहां पर नहीं जा रहा. बट अदरवाइज एक मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा इसके बाद अपने इस पीपीटी के अंदर, उसका वो डाल दूंगा लिंक. तो यू कैन सी देर आर, शायद यहाँ पर है. ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी या नहीं? यस सर. ये नया डायग्राम दिख रहा है आपको भी जो दिखा रहा हूँ? हाँ, तो इस पीपीटी में दे हैव गिवन इवन मोर सोफिस्टिकेटेड. ये देखो, ये अब वो लैंग्वेज आ गई, स्टार्ट, एंड, और, नॉट. इस तरह की हम लोग लैंग्वेज भी आगे और भी यूज कर सकते हैं रेदर देन लैडर डायग्राम. आप बताओ क्या क्वेश्चन आपका भी? प्रोसेसर से रिलेटेड था ना आपका क्वेरी कोई? सो प्रोसेसर में भी जब प्रोसेस हम क्यू करते हैं तो वो भी इसी तरीके से चलता है, तो वहाँ पे भी लैडर इम्प्लीमेंटेशन ही होती है? नहीं नहीं नहीं, प्रोसेसर में तो रजिस्टर वो तो बूलियन है, देखो बेटे, तो चलेगा तो डिजिटल के थ्रू ही. अगर हम मैं बात करूं कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन क्यूइंग होती है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में भी आपने पढ़ा होगा कि वो बिट वाइज उसको पहले ब्रेक करते हैं हम लोग. ठीक है, अगर उसको ऑप कोड है, ऑप कोड में ऑपरेशन ही ढूंढते हैं कि इसको क्या करना है. तो अल्टीमेटली काम वहां पर भी लॉजिकली हो रहा है कि एंड देखना है, और देखना है, सीक्वेंस में करना है. तो काम वहां पर भी वैसे ही हो रहा है, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है. तो प्रोसेसर में सीक्वेंशली काम ही होगा. पीएलसी के अंदर जितनी भी इनपुट्स हैं वो उनको स्कैन करेगा. मान लो 10 इनपुट हैं, तो 10 इनपुट का स्टेटस वो स्टोर कर लेगा कि 10 में से 6 ऑन है, 4 ऑफ हैं. तो उनके जितने भी लॉजिक प्रोग्राम के अंदर उसके पड़े होंगे, वो सबके साथ मैप करके देखेगा कि मुझे आउटपुट क्या क्या भेजनी है. उसके अकॉर्डिंगली वो सारी जो मैप टेबल है आउटपुट मॉड्यूल को दे देगा, और वो अकॉर्डिंगली वो आउटपुट को ऑन या ऑफ कर देगा. दैट इज हाउ इट वर्क्स. सर एक और डाउट था हम लोग के लैब असाइनमेंट को लेके. हाँ, लैब असाइनमेंट, जिसको मैं मिनिमाइज कर दूं ताकि इसके साथ कोई कंफ्यूजन ना हो. यस सर उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें एक तो हमें प्रोग्राम बनाना था ब्लिंकिंग एलईडी लाइट के लिए, ट्रैफिक लाइट. बिल्कुल. आंसर उसके फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ था कि स्विचिंग टाइम हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो वो मल्टीप्लायर हो रहा है. तो सर 2 प्रोग्राम्स बनेंगे उसके, या हम एक ही में कर सकते हैं? नहीं, एक ही प्रोग्राम है, एक भी कर सकते हैं. कुछ बच्चों ने मेरे पास असाइनमेंट्स ऑलरेडी सबमिट कर दी हैं. ठीक है, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एक में बना दिया है तो भी ओके है, अगर 2 बना रहे हो नो इशू. लेकिन हम आपके सिर्फ जो प्रोग्रामिंग के स्किल्स है वो चेक कर रहे हैं. अगर आपने अजम्पशंस ली हैं कि मेरे पास ट्रैफिक ऐसा आने से इतने टाइम का मुझे रेड लाइट चाहिए, इतने टाइम का ग्रीन चाहिए, और इतने का ऑरेंज चाहिए, तो हमारी जो आपको क्वेरी थी वो यही थी कि वेरिएबल एक हो टीपी, बाकी सारे जो टाइमिंग है उसके मल्टीपल हो जाएं और यहाँ डिवाइडर हो जाएं. यानी अगर आप एक को चेंज कर दो, टीपी को 5 से 6 कर दो, ठीक है, तो बाकी सारी लाइट्स उसके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाए. यही था, और कोई क्वेरी नहीं था. अगर आप इसको अलग से कर रहे हो लेकिन आप उसको लिख रहे हो कि मैंने इसको ऐसे समझा और ऐसे लिख दिया, और जो आपने assumption की है वो ट्रैफिक लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंगली जस्टिफाइड है, योर प्रोग्रामिंग विल बी एक्सेप्टेड. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तो यही सोचा था, यही लिखना है, यही सच होगा, ऐसा नहीं है. अगर आपने रियलिस्टिक कुछ सोचा है अपनी assumption के अंदर, और वो ट्रैफिक लाइटिंग के लिए ट्रू है, और आपका प्रोग्राम भी वैसे बना है, देयर इज नो इशू, विल गिव यू मार्क्स. ओके सर. ठीक है, बट आपने assumptions में क्लैरिफाई करना है. ऐसा नहीं है कि मुझे पता ही ना चले कि आप प्रोग्राम कैसे लिख रहे हो. ऐसे ही मैंने बच्चों को बोला कि आप डायग्राम बनाओ, और कुछ बच्चों ने तो मतलब पेंसिल से सिर्फ फ्लो दिखाया, एंड दैट इज ओके. कि पहले पटियाला जो थापर की तरफ से जो सीसीडी की तरफ ट्रैफिक जा रहा है,
उसके बाद वापस आ रहा है उधर से सीसीडी से इधर आ रहा है और आपने राइट वहां दे रखा है, ठीक है। यहाँ इधर से जाते हुए थापर की तरफ से जाते हुए नाबा रोड को भी ग्रीन हो रहा है और कोलंबिया एशो को भी ग्रीन एक टाइम पे मिल रहा है, और बाद में जो राइट है वो ऑफ हो जा रहा है। तो ये सारी असम्पशन बच्चों ने बताई हुई हैं, अकॉर्डिंगली प्रोग्राम किया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। तो अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, जितना आपको लग रहा है कि मुझे समझ आया है, ठीक है। आई एम ओके विद इट। ओके सर। ठीक है। और कोई क्वेरी? क्योंकि मैंने ना 2-3-4 बार इसको शेयर कर दिया ग्रुप पे, तो मैं ये नहीं चाहता कि आज मैं कुछ थोड़ा और बता दूं फिर आप सारे ग्रुप पे वही डाल दो कि आज तो सर ने ऐसा बोल दिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक डिस्कस हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप करो। अच्छा कि आपने पूछ लिया, थोड़ा अगर आपको डाउट हो रहा तो मैंने ये बता दिया कि आप अजम्पशन आपकी क्लैरिफाई कर दो, और वो अजम्पशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। ट्रैफिक लाइट जहाँ पर भी टी पॉइंट बनता है बस, और उसको रेफरेंस दे दो, कोई मैंने ये वाला रिजम्पशन लिया, इट्स ओके। राइट अगर नहीं दिया आपने, टर्न राइट टर्न या यू टर्न नहीं लिया, तो आप मेंशन कर दो, कोई इशू नहीं। ओके सर। ओके, अभी सिर्फ 2 मिनट बचे, यानी अदर क्वेरी। इसकी 30th है बेटे लास्ट डेट, है ना, 30th मई है, तो कोशिश करना आप उसके पहले पहले कर देना। इसके बाद हमारी जो लास्ट असाइनमेंट आएगी वो होगी जो एमएसटी के बाद का सिलेबस है। इसमें कुछ बच्चों की क्वेरी थी स्टूडेंट्स कि ये कुछ बाद वाले सिलेबस में, ऐसा तो कुछ नहीं है। लैब असाइनमेंट तो वही से हैं जो हमने ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग करवाई है और जो दूसरे 2 प्रोग्राम थे। इवन आप मेरे वो लेक्चर देख लो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए, वहाँ से आपको काफ़ी हिंट मिल जाएंगे। ठीक है जी। ओके, तो आई विल अपलोड ऑल दी स्लाइड्स फॉर यू पीपल, although these have been already uploaded and recorded lecture इसके ना स्वाति मैम को ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर पड़ा है, बट आई विल ऑल्सो अपलोड दिस जूम वीडियो फॉर योर रेफरेंस। ओके, तो सी यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, इस ग्रुप में कोई हमारे क्लास के अलावा कोई और भी बच्चा था, किसी और क्लास में भी था? ये सारे CO1 से 4 के बीच में ही हैं, क्योंकि मैंने विक्रम सर को भी शेयर किया था ये लिंक। सर इसमें 3 या 4 लोग तो CO1 के ही थे अभी। अच्छा, सारे हमारे क्लास के हैं, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। पानी